اور بی بی حاضرہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اس تپتے صحرا میں تنہا رہ گئے۔ بی بی حاضرہ کے پاس جو پانی اور کھجور کھاتی تھی وہ سب ختم ہو گئی۔ پانی نہ ملنے کی وجہ سے ان کی چھاتی کا دودھ بھی سوکھ گیا، اور جب بچے کے لیے بھی دودھ نہ اترا چھاتی سے تو بچہ بھی بھوک کی وجہ سے رونے لگا۔ ہیلو دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے شہریار خان، آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی کثار کے چینل۔ تو میرے چینل پر آپ کا بہت بہت خوش آمدید۔ دوستو، یہ ویڈیو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہانی کا چوتھا پارٹ ہے، قربانی کا سب سے بڑا امتحان۔ اور اب آتی ہے وہ کہانی جہاں ایک باپ کو اپنے ہی بیٹے کو قربانی دینے کا حکم ملا۔ سوچو تو دل پر کیا گزری ہوگی۔ لیکن ایمان کا امتحان سب سے بڑا امتحان ہوتا ہے۔ یہ ہے وہ پل جہاں سے اصل قربانی کی رخ شروع ہوتی ہے۔ تو آپ ویڈیو میں لاسٹ تک بنے رہیں۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مصر سے واپسی پر فلسطین میں رہائش اختیار کی۔ اس علاقے کو کنعان بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت تک اولاد سے محروم تھے۔ تورات کے مطابق حضرت ابراہیم نے اللہ کی بارگاہ میں بیٹے کے لیے دعا کی اور اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا اور ان کو تسلی دی۔ یہ دعا اس طرح قبول ہوئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چھوٹی بیوی محترمہ حضرت حاضرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاملہ ہوئی۔ جب حضرت سارہ کو یہ پتہ چلا تو انہیں بصر کے تقاضے کے طور پر رزق پیدا ہو گیا۔ اس صورتحال سے مجبور ہو کر حضرت حاضرہ ان کے پاس سے چلی گئی۔ تورات کے مطابق ان کا گزر ایک ایسی جگہ پر ہوا جہاں ایک کنواں تھا۔ اس جگہ وہ فرشتے سے ہم کلام ہوئی اور کنویں کا نام زندہ نظر آنے والے کا کنواں رکھا۔ تھوڑے دنوں کے بعد حضرت حاضرہ کو بیٹا پیدا ہوا اور فرشتے کی بشارت کے مطابق ان کا نام اسماعیل رکھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے بعد کے حالات بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی گئی روایت میں اس طرح بیان ہوئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام حاضرہ اور دودھ پیتے بچے اسماعیل کو لے کر چلے اور جہاں آج کعبہ ہے اس جگہ ایک بڑے پیڑ کے نیچے زمزم کی موجودہ جگہ سے اوپری حصے پر ان کو چھوڑ گئے۔ وہ جگہ ویران اور غیر آباد تھی اور پانی کا نام و نشان نہ تھا، اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے ایک مشک پانی اور ایک تھیلی کھجور بھی ان کے پاس چھوڑ دی اور پھر منہ پھیر کر روانہ ہو گئے۔ حاضرہ علیہ السلام ان کے پیچھے پیچھے یہ کہتے ہوئے چلی، اے ابراہیم، تم ہم کو ایسی گھاٹی میں کہاں چھوڑ کر چل دیے جہاں نہ آدمی ہے اور نہ بچہ اور نہ کوئی مونس و گموار۔ حاضرہ برابر یہ کہتی جاتی تھی مگر ابراہیم علیہ السلام خاموش چلے جا رہے تھے۔ آخر حاضرہ نے معلوم کیا، کیا اللہ نے تم کو یہ حکم دیا ہے؟ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمائے، ہاں، اللہ کے حکم سے ہے۔ حاضرہ علیہ السلام نے جب یہ سنا تو کہنے لگی، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو بے شک وہ ہم کو ضائع اور برباد نہیں کرے گا، اور پھر واپس لوٹ آئی۔ ابراہیم علیہ السلام چلتے چلتے جب ایک ٹیلے پر ایسی جگہ پہنچے کہ ان کے گھر والے نگاہ سے اوجھل ہو گئے تو اس وادی کی اور رخ کیا جہاں آج کعبہ ہے اور ہاتھ اٹھا کر یہ دعا مانگی، اے ہم سب کے پروردگار، تو دیکھ رہا ہے کہ ایک ایسے میدان میں جہاں کھیتی کا نام و نشان نہیں، میں نے اپنی کچھ اولاد تیرے محترم گھر کے پاس لا کر بسائی ہے کہ وہ نماز قائم رکھے تاکہ ہم محترم پر ایک خدا کی عبادت کرنے والوں سے خالی نہ رہے، پر تو اپنے فضل و کرم سے ایسا کر کہ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل ہو جائے اور ان کے لیے زمین کی پیداوار سے رزق کا سامان مہیا کر دے تاکہ تیرے شکر گزار ہو۔ اور بی بی حاضرہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اس تپتے صحرا میں تنہا رہ گئے۔ بی بی حاضرہ کے پاس جو پانی اور کھجور کھاتی تھی وہ سب ختم ہو گئی۔ پانی نہ ملنے کی وجہ سے ان کی چھاتی کا دودھ بھی سوکھ گیا، اور جب بچے کے لیے بھی دودھ نہ اترا چھاتی سے تو بچہ بھی بھوک کی وجہ سے رونے لگا۔ تو بی بی حاضرہ نے بچے کو ایک کھجور کی جھاڑ کے چھاؤں میں لٹا دیا، اور سامنے دو پہاڑیاں تھی جسے آج صفا اور مروہ کے نام سے جانا جاتا ہے، اس پہاڑی پر چڑھ گئی کہ دیکھے شاید کوئی قافلہ یا کوئی انسان دکھ جائے تو کم سے کم اس سے پانی مانگ لے کہ جسم میں پانی تو جائے تاکہ بچے کے لیے دودھ بن جائے اور بچے کی بھوک مٹے۔ جب وہ ایک پہاڑی پر چڑھی تو بچہ آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا، بچے کی محبت میں اس جلد سے نیچے اتر آتی، لیکن بچے کو روتا دیکھ جلدی سے بھاگ کر دوسری پہاڑی پر چڑھ جاتی کہ شاید کوئی نظر آ جائے اور کچھ مدد مل جائے۔ اس طرح آپ نے ان دونوں پہاڑی کے ساتھ چکر لگائے، کبھی پہاڑی پر چڑھتی اور کبھی اولاد
औलाद की मोहब्बत में नीचे उतर आती। अल्लाह ताला को बीवी हाजरा की अपनी औलाद के लिए मशक्कत मेहनत इतनी पसंद आई कि अल्लाह ताला ने हर मुसलमान मर्द और औरत पर जो भी मक्का शरीफ में हज या उम्र के लिए आता है उनके लिए सफा मरवा की दोनों पहाड़ियों के साथ चक्कर लगाना फर्ज कर दिया है और ये भी हज और उम्र के अरकानों में शामिल है। जब बीवी हाजरा उन दोनों पहाड़ियों पर दौड़कर चढ़ती और औलाद की मोहब्बत और बेकरारी में नीचे उतर आती, इधर बच्चा भूख से रो रहा था और अपनी एड़ियां जमीन पर रगड़ रहा था। उसी वक्त रहमत इलाही जोश में आई और इस्माइल अलैहिस्सलाम जहां अपनी एड़ियां रगड़ रहे थे उस जगह से पानी का चश्मा फूट पड़ा। जब बीवी हाजरा ने पानी देखा तो दौड़कर अपने बच्चे के पास पहुंची और उस पानी को जो बह रहा था रोकने के लिए उसको चारों तरफ रेत की दीवार बना दी और कहते जाती थी जमजम, यानी कि रुक जा या ठहर जा, इसलिए उस पानी का नाम अबे जमजम पड़ गया। इसी दौरान बनी जुरहम का एक कबीला इस वादी के करीब आ ठहरा। देखा तो थोड़े से फासले पर परिंदे उड़ रहे हैं। जुरहम ने कहा यह पानी की निशानी है, यहाँ जरूर पानी मौजूद है। जुरहम ने भी क़ियाम की इजाजत मांगी। हाजरा ने फरमाया क़ियाम कर सकते हो लेकिन पानी में मिल्कियत के हिस्सेदार नहीं हो सकते। जुरहम ने यह बात खुशी से मंजूर कर ली और वहीं मुकीम हो गए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि हाजरा भी आपसी उन्स व मोहब्बत और साथ के लिए यह चाहती थी कि कोई आकर यहाँ ठहरे, इसलिए उन्होंने खुशी के साथ बनी जुहरम को क़ियाम की इजाजत दे दी। जुरहम ने अपने आदमी को भेजकर अपने बाकी खानदान वालों को भी बुला लिया और यहाँ मकान बनाकर रहने सहने लगे। इन्हीं में इस्माइल अलैहिस्सलाम भी रहते और खेलते और उनसे उनकी जुबान सीखते। जब इस्माइल अलैहिस्सलाम बड़े हो गए तो उनका तरीका और अंदाज और उनकी खूबसूरती बनी जुहरम को बहुत भाई और उन्होंने अपने खानदान की लड़की से उनकी शादी कर दी। हजरत इस्माइल की बीवियों के बारे में इस तरह बयान हुआ है, इब्राहिम बराबर अपने बाल बच्चों को देखने आते रहते थे। एक बार तशरीफ लाए तो इस्माइल अलैहिस्सलाम घर पर ना थे। उनकी बीवी से मालूम किया तो उन्होंने जवाब दिया कि रोजी की खोज में बाहर गए हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मालूम किया गुजर बसर की क्या हालत है। वह कहने लगी सख्त मुसीबत और परेशानी में है और बड़े बड़े दुख की तकलीफ में। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने यह सुनकर फरमाया इस्माइल से मेरा सलाम कह देना और कहना कि अपने दरवाजे की चौखट तब्दील कर दो। इस्माइल अलैहिस्सलाम वापस आए तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नूर नबूवत के असरात पाए। पूछा कोई आदमी यहाँ आया था। बीवी ने सारा किस्सा सुनाया और पैगाम भी। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वह मेरे बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे और उनका मशवरा है कि तुझको तलाक दे दूं, इसलिए मैं तुझको जुदा करता हूँ। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फिर दूसरी शादी कर ली। एक बार इब्राहिम अलैहिस्सलाम फिर इस्माइल की गैर मौजूदगी में आए और उसी तरह उनकी बीवी से सवाल किए। बीवी ने कहा अल्लाह का शुक्र व एहसान है, अच्छी तरह गुजर रही है। मालूम हुआ खाने को क्या मिलता है। इस्माइल अलैहिस्सलाम की बीवी ने जवाब दिया गोश्त। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूछा और पीने को। उसने जवाब दिया पानी। तब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी अल्लाह इनके गोश्त और पानी में बरकत अता फरमा और चलते हुए यह पैगाम दे गए कि अपने दरवाजे की चौखट को मजबूत रखना। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम आए तो उनकी बीवी ने तमाम वाक़या दोहराया और पैगाम भी सुनाया। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि यह मेरे बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे और उनका पैगाम यह है कि तू मेरी जिंदगी भर जीवन साथी रहे। तौरात के बयान के मुताबिक जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र 11 साल हुई और हजरत इस्माइल की 13 साल तो अल्लाह ताला का हुक्म आया कि खतना करो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हुक्म की तामील में पहले अपनी की और इसके बाद इस्माइल अलैहिस्सलाम और अपने तमाम खानाजादों, घर वालों और गुलामों की खतना कराई। यही खतने की रस्म आज भी इब्राहिमी मिल्लत का शिआर है और सुन्नत इब्राहिमी के नाम से मशहूर है। दोस्तों अब हम बात करते हैं बाप और बेटी की कुर्बानी के बारे में। अल्लाह के मुकर्रब बंदों की इम्तिहान व आजमाइश की सख्त से सख्त मंजिलों से गुजरना पड़ता है। पहली मंजिल वह थी जब उनको आग में डाला गया तो उस वक्त उन्होंने जिस सब्र और अल्लाह के फैसले पर राजी होने का सबूत दिया वह उन्हीं का हिस्सा था। इसके बाद जब इस्माइल और हाजरा को फरआन के बयान में छोड़ आने का हुक्म मिला तो वह भी मामूली इम्तिहान ना था। अब एक तीसरे इम्तिहान की तैयारी है जो पहले दोनों से भी ज्यादा हिला देने वाला और जान लेने वाला इम्तिहान है। यही कि हजरत इब्राहिम 3 रात तक बराबर ख्वाब देखते रहे
कि अल्लाह ताला फरमाता है कि ए इब्राहिम तू हमारी राह में अपने इकलौते बेटे की कुर्बानी दे। नबियों का ख्वाब सच्चा ख्वाब और वहाँ इलाही होता है, इसलिए इब्राहिम रजा व तस्लीम बनकर तैयार हो गए कि अल्लाह के हुक्म की जल्द से जल्द तालीम करे, चूँकि यह मामला अकेली अपनी जात से मुताल्लिक न था, बल्कि इस आजमाइश का दूसरा हिस्सा वह बेटा था जिसकी कुर्बानी का हुक्म दिया गया था। इसलिए बाप ने अपने बेटे को अपना ख्वाब और अल्लाह का हुक्म सुनाया। बेटा इब्राहिम जैसे नबी और रसूल का बेटा था, तुरंत हुक्म के आगे सर झुका दिया और कहने लगा, अगर अल्लाह की यही मर्जी है तो इंशाअल्लाह आप मुझको सब्र करने वाला पाएंगे। इस बातचीत के बाद बाप बेटे अपनी कुर्बानी पेश करने के लिए जंगल रवाना हो गए। बाप ने बेटे की मर्जी पाकर ज़िबा किए जाने वाले जानवर की तरह हाथ पैर बांधे छुरी को तेज किया और बेटे को पेशानी के बल पछाड़ कर ज़िबा करने को तैयार हो गए। फौरन अल्लाह की वहाँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, ऐ इब्राहिम तूने अपना ख्वाब सच कर दिखाया, बेशक यह बहुत सख्त और कठिन आजमाइश थी। अब लड़के को छोड़ और तेरे पास जो मेढा खड़ा है उसको बेटे के बदले में ज़िबा कर, हम नेकों को इस तरह नवाजा करते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पीछे मुड़कर देखा तो झाड़ी के करीब एक मेढा खड़ा है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए उस मेढे को ज़िबा किया। यह वह कुर्बानी है जो अल्लाह की बारगाह में ऐसी मकबूल हुई कि यादगार के तौर पर हमेशा के लिए मिल्लत इब्राहिमी का शियार करार पाई और आज ज़िल-हिज्जा की 10वीं तारीख को तमाम इस्लामी दुनिया में यह शियार उसी तरह मनाया जाता है। दोस्तों हम बात करते हैं काबा की बुनियाद के बारे में। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अगरचे फलस्तीन में ठहरे थे, मगर बराबर मक्का में हाजरा और इस्माइल अलैहिस्सलाम को देखने आते रहते थे। इसी बीच इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह का हुक्म हुआ कि अल्लाह के काबे की तामीर करो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से जिक्र किया और दोनों बाप बेटों ने अल्लाह के घर की तामीर शुरू कर दी। एक रिवायत के मुताबिक बैतुल्लाह की सबसे पहली बुनियाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम के हाथों रखी गई और अल्लाह के फरिश्तों ने उनको वह जगह बता दी थी जहाँ काबे की तामीर होनी थी, मगर हजारों साल के हादसों ने असरा हुआ उनको बेनिशान कर दिया था। अलबत्ता अब भी वह एक टीला या उभरी हुई जमीन की शक्ल में मौजूद था। यही वह जगह है जिसको अल्लाह की वही ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बताया और उन्होंने इस्माइल अलैहिस्सलाम की मदद से उसको खोदना शुरू किया तो पिछली तामीर की बुनियादें नजर आने लगी। इन्हीं बुनियादों पर बैतुल्लाह की तामीर की गई। अलबत्ता कुरान पाक में पिछली हालात का कोई तज़किरा नहीं है। दूसरी तरफ यह हकीकत है कि इस तामीर से पहले तमाम कायनात और दुनिया के कोने कोने में भूतों और सितारों की पूजा के लिए हैकल और मंदिर मौजूद थे, पर इन सब के उलट सिर्फ एक खुदा की परस्ती और उसकी एकताई के इकरार में सरे नियाज झुकाने के लिए दुनिया के बुत कदों में पहला घर जो खुदा का घर कहलाया। बेशक सबसे पहला यह घर जो लोगों के लिए अल्लाह की याद के लिए बनाया गया, अलबत्ता वह है जो मक्का में है। वह है सर से पैर तक बरकत और दुनिया वालों के लिए हिदायतों का सरचश्मा। इसी तामीर को यह शरफ हासिल है कि इब्राहिम जैसा जलीलुल कद्र पैगंबर उसका मेमार है और इस्माइल जैसा नबी व ज़बी उसका मजदूर बाप बेटे बराबर उसकी तामीर में लगे हुए हैं। और जब यह उसकी दीवारें पूरी उठती हैं और बुजुर्ग बाप का हाथ ऊपर तामीर करने से माजूर हो जाता है तो कुदरत की हिदायत के मुताबिक एक पत्थर को बड़ा बनाया जाता है जिसको इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने हाथ से सहारा देते और इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस पर तामीर करते जाते हैं। यही वह यादगार है जो मकाम इब्राहिम से जाना जाता है। जब तामीर इस हद तक पहुंची जहां आज हजर अस्वद नस्ब है तो जिब्रील अमीन ने उनकी रहनुमाई की और हजर अस्वद को उनके सामने एक पहाड़ी से महफूज निकाल कर दिया जिसको जन्नत का लाया हुआ पत्थर कहा जाता है ताकि वह नस्ब कर दिया जाए। अल्लाह का घर तामीर हो गया तो अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बताया कि यह मिल्लत इब्राहिम के लिए किबला और हमारे सामने झुकने का निशान है, इसलिए यह तौहीद का मरकज करार दिया जाता है। तब इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी कि अल्लाह ताला उनको और उनकी ज़ुर्रियत आल औलाद को नमाज और ज़कात कायम करने की हिदायत दे और इस्तिकामत बरते और उनके लिए फलों मेवों और रिस्क में बरकत दे और दुनिया के कोने कोने में बसने वाले गिरोह में से हिदायत पाए हुए गिरोह को इस तरफ तवज्जो करे कि वे दूर दूर से आए और हज के मनासिक अदा करे और हिदायत और रुश्द के मरकज में जमा होकर अपनी जिंदगी की सदाअतों से दामन भरे। कुरान मजीद ने बैतुल्लाह की तामीर
तामीर के वक्त इब्राहिम और इस्माइल की मुनाजात, नमाज कायम करने और हज की रस्मों को अदा करने के लिए शौक व तमन्ना के इजहार और बैतुल्लाह के तौहीद का मरकज होने के ऐलान का जगह जगह जिक्र किया है और नए नए उसलूब और तर्ज अदा से और उसकी अजमत और जलालत व जबरूत को सूरह अल इमरान, अल बकर और अल हज में वाज़े फरमाया है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान मजीद में कई बार हुआ है। सूरह मरियम में उनके नाम के साथ उनके औशाफ़े ज़मीला का भी जिक्र किया गया है और याद कर किताब में इस्माइल का जिक्र था। वह वायदे का सच्चा था और था नबी और हुक्म करता था अपने आल को नमाज और ज़कात का और था अपने परवरदिगार के नजदीक पसंदीदा। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र जब 136 साल हुई तो उनका इंतकाल हो गया। तारीख रिवायत के मुताबिक हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वफात फलस्तीन में हुई और फलस्तीन में ही उनकी कब्र बनी। अरब तारीख के माहिरों के मुताबिक वह और उनकी वालिदा हाजरा बैतुल्लाह के करीब हरम के अंदर दफन है। वल्लाहु आलम। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हम हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम का जिक्र करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।